Hi everyone, welcome to AgriClarity, your one-stop channel for agriculture, food technology, and competitive exams guidance. So today we are going to talk about very important two examinations conducted by FSSI. The first is Junior Analyst Examination, and second is Food Analyst Examination. So if you are from food technology, microbiology, agricultural sciences, or biochemistry student and want to make a career in food testing laboratories, this video is for you. Okay. So let's see what we'll cover in today's session. Okay. So we'll cover what these exams are all about and what are their patterns, eligibility criteria, and career scope. The difference between junior analyst and food analyst examination, how often these examinations are conducted, and finally why they are excellent career focus for students in food and allied sciences sector. Okay, so let's dive in. So first is junior analyst examination. Okay, so first let's talk about this examination. This examination was introduced by FSSAI in 2017 to create a pool of certified junior analysts. The idea was simple. India needs a skill manpower in food testing laboratories, and JEE, which is Junior Analyst Examination, helps in certifying fresh graduates, postgraduates, or doctoral candidates who can join labs and assist food analysts. Okay. So before moving on to the session, I would like to clarify that JEE और फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन दोनों ही एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन है। इन दोनों से कोई आप मतलब कि आपको एफएसएसआई में डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है। ओके, आपको ये दोनों एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने होंगे, देन आपको इनके सर्टिफिकेट्स को यूज करके आप लेबोरेटरी में एज अ एनालिस्ट रिक्रूट हो सकते हो। ठीक है, सो इस वजह से ये एग्जामिनेशन काफी डिफरेंट है एंड काफी ज्यादा कंफ्यूज्ड है अमंग स्टूडेंट्स, इसलिए आज हमने ये सेशन कंडक्ट किया है, राइट। Then let's see what are the eligibility criteria of JEE. So एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो सारे बैचलर्स डिग्रीज जैसे कि केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी केमिस्ट्री, फूड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल्सो एग्रीकल्चर साइंसेस, ये सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, चाहे बैचलर्स हो उनके पास, मास्टर्स हो या फिर डॉक्टरल कैंडिडेट्स हो। कोई भी एज लिमिट नहीं होता, कोई भी एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, फ्रेश ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम ये पूरे चीज़ें हमारे फूड एनालिस्ट के लिए भी सेम है, बस वहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, वहाँ पे डिफरेंस है हमारा मेजर, वहाँ पे हमारी एक्सपीरियंस। ओके, यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, बट देर इज इन द एग्जामिनेशन ऑफ फूड एनालिस्ट एग्जामिनेशन there is a mandatory experience required of 3 years. Okay, so only this part makes the both the exam different from each other, right? Then no experience required, no age limit, no reservation required. That means up this examination is open to all candidates. Okay, so कोई भी एग्जाम इस एग्जामिनेशन में किसी तरीके से जनरल ओबीसी तरीके से कैटेगराइज नहीं किया गया है, सो सारे सीट्स सारे कैपेबल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल होता है इसमें। ओके, so it is one of the good part of this examination, right? Then moving on to the exam pattern of the JEE, this is a single stage computer-based examination. Okay. Let me take one place point. Okay. Single stage computer-based examination, which is a written examination of objective type, in which general aptitude, general awareness, then basic about food chemistry, microbiology, and food safety concepts are asked. Generally about 200 questions in 120 minutes, and there is also a predefined cutoff is सेट फॉर दिस एग्जामिनेशन विच इज 40%। आपको 40%, 200 का 40% आपको लाना है, देन यू विल बी क्वालिफाइड एंड यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑफ जूनियर एनालिस्ट बाय एफएसएसआई। ओके, देन अगर आपको और भी इसके एग्जामिनेशन पैटर्न या फिर कितना इन सारे एग्जामिनेशन पैटर्न में जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए गए इनके वेटेज के बारे में जानना है या फिर किस तरीके से इनके पीवाईयू को डिस्कस करवाना चाहते हैं अगर आप लोग, तो प्लीज ड्रॉप योर सजेशन इन द कमेंट्स। ओके, आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम पैटर्न ऑफ बोथ जेई एंड एफए। ओके, राइट। सो मूविंग ऑन, व्हाट आर द करियर स्कोप ऑफ जेई, क्यों हमें जेई को ऑप्ट करना चाहिए अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट से, अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरेस्ट हो रिसर्च, लैब रिसर्च करने में, देन ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्कोप बन सकता है।
Okay, so once you qualify, you get junior analyst certificate from FSSI. Okay, with this certificate, you can work as a support staff in food testing laboratories, and your role is to assist food analyst and perform routine testing and maintain records and documentation. Most importantly, this is a certificate. This certificate act as a stepping stone because after gaining 3 years of lab experience, you become eligible to appear for food analyst examination directly. So JEE is the entry point in the professional world of food analysis. इसका मतलब ये हुआ कि आपको जेई के सर्टिफिकेट के बाद 3 इयर्स का और आपको एक्सपीरियंस लेने की जरूरत है। देन आप एक प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो फसाई एफएसएसआई कंडक्ट करती है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। देन आपको अगेन एक और फाइनल सर्टिफिकेट मिलता है और आप उसको यूज करके जो भी एनएबीएल रजिस्टर्ड लेबोरेटरीज है वहां पे आप अगर इनकेस वहां पे कोई भी पोस्ट वैकेंसी आती है देन आप वहां पे अपने सर्टिफिकेट को अप्लाई करके वहां जॉब ले सकते हैं। ओके, सो ये एक एंट्री पॉइंट हो जाता है। इसका एक ये भी चीज होता है, अगर आप जैसे कि फूड एनालिस्ट का एग्जामिनेशन जब कर लेते हैं क्वालिफाई जेई का, तब क्या होता है कभी कभार आपको खुद कंपनीज ही वहां पे मतलब कि एक पैसा एक तरीके से कहना चाहिए इनिशिएटिव इन्होंने लॉन्च किया हुआ है कि वहां पे जब आपका हो जाता है तो वहां पे एक तरीका सा कॉन्फ्रेंस कहा जा सकता है या फिर मीटअप वर्कशॉप कहा जा सकता है जहाँ पे काफी सारी लीडिंग फूड फूड रिलेटेड जो भी सेक्टर्स में जो भी कंपनीज है वहां पे वो आती है। देन आप वहां पे जाके अपने सर्टिफिकेट को शो करके डायरेक्टली वहीं कॉन्फ्रेंस से या वर्कशॉप से जॉब पिक कर सकते हैं। लेट्स से डाबर कंपनी, गोदरेज कंपनी, पतंजलि कंपनी, ठीक है, ये सारे काफी ज्यादा बड़ी बड़ी लीडिंग कंपनीज हैं जो आपको पता होगा, जो काफी इनका मेन स्ट्रीम जो भी हमारे प्रोडक्ट्स डे टू डे लाइफ में हम कंज्यूम करें इन्हीं के कंपनीज के थ्रू वो हमें आई मीन हम उसे बाय करते हैं। तो इस तरीके से भी अभी फसाई हेल्प कर रही है स्टूडेंट्स को टू गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू द एक्सेस ऑफ दिस सर्टिफिकेट। ओके, so now let's see what is the link between JEE and FE examination. Okay, so now the question is that the junior analyst examination is same as the food analyst examination. So the answer is no, because junior analyst examination is an entry level certification examination, whereas FAE is a advanced level certification. So you can think of this it as a way like junior analyst examination is a junior role assisting in food analysis, and whereas FAE is a senior role responsible for authority in food analysis. Okay, जो भी आपके जो फूड सेफ्टी ऑफिसर्स हो गए जो भी आपको सैंपल सेंड करते हैं, अगर आपने कभी भी सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर किया होगा तो आपको पता होगा कि वो सैंपल्स आपको भेजते हैं एनएबीएल लैब में। तो वो जो सैंपल्स का असेसमेंट होता है वो एक फूड एनालिस्ट ही करता है। ओके, तो ये एक एडवांस सर्टिफिकेशन है, एडवांस रोल है। ओके, देन आपको क्या होगा यहाँ पे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्टेज में बताया था, आफ्टर गेनिंग जेई सर्टिफिकेट आपको 3 इयर्स का और एक्सपीरियंस लेना होगा, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं टू अपियर फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। ओके, देन ये सारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फसाई कंडक्ट करवाती है आपको। सारे डिफरेंट डिफरेंट जो भी एनेबल लैब्स होते हैं उधर ही सेंटर मिलते हैं, वहां पे आपको जाके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन अपना कंप्लीट करना होता है। इट इज ऑल्सो क्वालिफाइंग नेचर, बट आपको डिसेंट मार्क्स लाने होते हैं, देन ओनली यू विल गेट एफएई सर्टिफिकेट। ओके, so after this is was all so in this way JE and FAE are different but interlinked, so one opens the door for the other, right? Now let's move on to the next examination, FAE examination, which is conducted by FSI to certify you as a food analyst. It is or we can say that a food analyst is a person who signs off reports in laboratory, validates testing, and can even act as an expert witness in courts under the Food Safety and Standards Act. Okay, so ये सारी चीजें इनके रोल में आती हैं हमारे एफएई के इन फूड एनालिस्ट के रोल में, राइट? देन हम देखते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगेन आई हैव सेड दैट इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एकदम सिमिलर है। एक वहां पे मैंने पॉइंट मिस किया था कि अगर आपने इन सब के अलावा अगर आपने किसी एसोसिएट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ केमिस्ट से भी अगर आपने डिग्रीज कुछ आपने अटेन की है, देन ऑल्सो यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। देन मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस इसमें रिक्वायर्ड है। देन जेई होल्डर्स भी इसमें एलिजिबल होते हैं फॉर एफए, मतलब कि फॉर वंस इज दैट मीन्स आपको एक बार अगर जेई का सर्टिफिकेट मिल गया तो आप वो सर्टिफिकेट को सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो।
ओके। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक बार यूज कर लिया देन अगेन आपने वापस से उसी सर्टिफिकेट को यूज करके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए अपियर होने की ट्राई किया, तो वो एक एलिजिबल रोल नहीं है। वो उस तरीके से ये एग्जामिनेशन प्रोसेस या प्रोटोकॉल अप्लाई नहीं करता, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे हमने कहा है कि वंस, ओके। सो इसमें अगेन नो एज लिमिट, नो रिजर्वेशन इज सेड आल्सो इन FAE, okay. Now let's see what are the exam pattern of FAE. So this is there is two stages in this examination. First is computer based examination where 200 MCQs of 3 hours. Again cutoff is decided here also 40%. आपको यहाँ पे वेटेज दिख रहा होगा सारे जो भी इस डोमेन बेस्ड एग्जामिनेशन जो फर्स्ट होता है डोमेन बेस्ड एग्जामिनेशन, उसमें ये सारे वेटेज होते हैं। देन आपको सेकेंड स्टेज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बोला जाता है आफ्टर गेनिंग आई मीन, मतलब आप जब 3 इयर्स के लिए हो जाते हो एलिजिबल, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर, जैसे कि अगर किसी ने जेई का एग्जामिनेशन नहीं दिया, वो डायरेक्टली FAE का एग्जामिनेशन देना चाहता है और उसके पास ऑलरेडी 3 इयर्स का एग्जाम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो उसको ये दोनों स्टेजेस देना होगा। और अनलेस अगर आपके पास जेई का सर्टिफिकेट है तो आपको फर्स्ट स्टेज नहीं देना होगा, डायरेक्टली आप सेकेंड स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ओके। सो डिफरेंस ये हो जाता है। देन प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है, कैंडिडेट्स क्वालिफाई CBT देन दे कैन अपियर फॉर हैंड्स ऑन लैब टेस्ट, दे फोकस ऑन सैंपल प्रिपरेशन, हैंडलिंग, टेस्टिंग ऑफ फूड पैरामीटर्स एंड using and following FSA manual of methods of analysis of foods and report writing and data interpretation. Okay, so only candidates clearing both the stages are awarded the food analyst examinations, a food analyst certificate. Okay, let's see what are the career scopes of FE. So you can be officially appointed a food analyst in FSSAI notified labs or NABL labs. Okay, then uh, then you can, your role is that you have to test and certify food samples. Then you are involved in ensuring the compliance with the Food Safety and Standards Act. You act as an expert witness in legal cases related to food safety. Then you lead the teams of junior analysts and the food lab staffs, food lab staffs. Okay, so ये सारे हमारे रोल्स होते हैं FAE के, जो भी हमने अभी डिस्कस किए। Okay, so let's see what are the frequency of this examination of occurring. So food analyst examination is conducted almost every year, but junior analyst examination अब थोड़ा frequent हो गया है फर्स्ट 2017 में, लेकिन अभी भी हो रहा है। बट गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रही है कि इसको एक फेलोशिप एग्जामिनेशन की तरह हम कंडक्ट करें, ताकि आपको जो 3 इयर्स का जो आपको कहा गया था यही के बाद, तो उसमें एक आपको फेलोशिप स्टाइपेंड मिला जाएगा। और देन आपको डायरेक्टली जो भी इस फेलोशिप के थ्रू जो कैंडिडेट्स एलिजिबल थे उनको डायरेक्टली आप प्रैक्टिकल स्टेज के लिए एलिजिबल डिक्लेयर कर देते हैं। तो इस तरीके से अभी फसाई सोच रही है, बट सो फार अभी तक कुछ हुआ नहीं। ओके, सो इस वजह से कह सकते हैं कि सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन यू शुड कीप ट्रैक ऑफ ऑफिशियल FSSAI notifications on their websites. Okay, so conclusion we can say that, so that to wrap up today's session, JEE is a entry level examination, no experience needed, good for fresh graduates, postgraduates and doctoral candidates. Candidate certificates allow you to work in labs and later move to food analyst examination. For FAE, we said that it is an advanced level examination, needs a degree plus 3 years experience, and there is a two-stage examination. The certificates allows you to be a food official food analyst in with the authority. Okay, you will be a official food analyst with the authority. So these examination extremely valuable because India needs more skill powered in the food testing laboratories, and food safety is becoming more important every year with rising health awareness and global trade. And certified analysts have an excellent career growth in government labs, private testing laboratories, food companies, and even as a consultants. Okay. So if you are preparing for food technology, if you're from agricultural science or food technology, biochemistry, microbiology, or any other allied sciences sector, focusing on these examinations can open doors to a stable, respected, and a impactful career. Okay, so that's all for today's video. If you found this explanation useful, don't forget to like, subscribe, and share this video. And
for more exam relevant guidance and agriculture insights, please don't forget to subscribe this channel, right? So see you in the next session. Until then, keep learning, keep growing. Thank you.